শ্রী কালিদাস বসুমশাই উনি যেন ওপরে আসেন। আচার্য বিষ্ণুকান্ত ডক্টর হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা পুরস্কারের পঞ্চম সমারোহ অনুষ্ঠানে পুস্তকালয় পরিবারের পক্ষ থেকে অভ্যাগত সকলকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আজকের দিনটি এমন একটি দিন, গত 5 বছরের অভিজ্ঞতায় কলকাতার সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তি মাত্রই আজকের দিনটির দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন। আজকে আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়েছে যেদিন আবার কলকাতায় এক অপূর্ব জ্যোতিষ্ক সমারোহ মঞ্চের ওপরে আমরা দেখছি। আর আকুল আগ্রহ এবং আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি যে কখন তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু এমন শুনব যার দ্বারা আমাদের অন্তর্লোক আলোকিত হবে, যার দ্বারা ভারতীয় জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা তার আলোকে আমরা নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করতে পারব। আর সেই সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত। সামান্য একটু দায়িত্ব পালনের জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। সেটুকু হচ্ছে আজকের যারা অভ্যাগত অতিথি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কারণ তাদের মধ্যে কেউই পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বটুকু পালন করেই আপনাদের এবং মঞ্চপরি উপবিষ্ট যে বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ রয়েছেন তাদের মাঝখান থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নেব। আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে এরকম দুঃসাহস কারোর হওয়ার কথা নয় যে ওর পরিচয় কলকাতার শত্রুবৃন্দের কাছে করিয়ে দেবে, কিন্তু দু একটি কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজন।
যে আমরা অনেক মানুষকে আইনজীবী হিসেবে জানি, অনেকে আইনজ্ঞ হিসেবে সুনাম অর্জন করেন, আইন শাস্ত্রবেত্তা হিসেবে অনেকে পরিচিত হন, আইনের শিক্ষক হিসেবে অনেকে প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু একই ব্যক্তি যার ভেতরে এই সবগুলি গুণের অদ্ভুত প্রভাব দেখা যায়, যার সহকর্মীরা, ছাত্ররা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করেন, সেই ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, যিনি আমাদের আহ্বানের আগেও আমাদের নানান কার্যক্রমেতে এসেছেন, সহযোগিতা করেছেন। আজকেও আমরা তাকে পেয়ে ধন্য। 1975 সাল থেকে 77 সাল একটা অত্যন্ত কালো অধ্যায় ভারতের ইতিহাসের। সেখানে দেখেছি যে যারা গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তাদেরও পুরোধা হিসেবে ওনার সঙ্গে আমাদের কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। এবং তারপরে যে একটি বৈপ্লবিক নির্বাচন 77 সালে হয়েছিল, সেই নির্বাচনে অত্যন্ত ভালোভাবে জয়ী হয়ে আমরা তাকে দিল্লিতে পাঠিয়েছিলাম এবং বাংলার পক্ষ থেকে বাংলার পরম্পরা অনুযায়ী তিনি দেশের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে। সেই প্রতাপ বাবুকে আমরা আজকেও নিরলসভাবে দেশের বিভিন্ন যে সমস্যা রয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সব বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত। সেই প্রতাপ বাবু আজকে আমাদের মধ্যে এসেছেন, সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাবো, তাকে অভ্যর্থনা করব একটি অঙ্গবস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে। তাকে পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে পুস্তকালয়ের সহসভাপতি শ্রী নেমচাঁদজি কান্দুই তিনি অঙ্গবস্ত্র প্রদান করবেন এবং আমাদের সকলকার পক্ষ থেকে নমস্কার জানাবেন। শ্রী বিদ্যানিবাসজি মিশ্র আজকের কার্যক্রমের মধ্যমণি। তিনি এসেছেন আমাদের আহ্বানে, কারণ চয়ন সমিতি গত 4 বছরের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত থেকে যে মনীষীকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে চয়ন করেছেন, সেই বিদ্যানিবাসী মিশ্র, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সকলকার হাতে একটি পত্রিকা হিসাবে রয়েছে। তাই তার বহুমুখী জীবনের, বহুমুখী প্রতিভার আমি পুনরুল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু একটি কথা যা আমাকে স্পর্শ করেছে তা হচ্ছে এই যে আমাদেরকে সাধারণভাবে একটি উপদেশ দেওয়া হয় যে ডোন্ট পুট অল ইয়োর এগস ইন দি সেম বাস্কেট, একই আধারে সব কিছু রতনরাজি রেখো না। কিন্তু আমার মনে হয় যে বিদ্যা দেবী, দেবী সরস্বতী এই উপদেশের তোয়াক্কা না করে একই আধারে এত বিভিন্ন গুণ একই জনের ভেতরে কি করে দিলেন, ভাবতে গিয়ে বড় আশ্চর্য লাগে। আপনারা ওর বৈচিত্র্যময় জীবন সূচি দেখুন। কেবলমাত্র একটি কথাই বলবো যে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় এ মেনি স্প্লেন্ডার্ড পার্সোনালিটি, আমার মনে হয় বিদ্যানিবাসী মিশ্রের ক্ষেত্রে
তা অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রযোজ্য। তার যে প্রতিভা, সে প্রতিভার তার যে সারস্বত সাধনা, সেই সাধনার মূল সুর যদি কেউ ধরতে চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন সেখানে বিরাজ করছে তার এক আন্তরিক সৃজনশীলতার প্রতি আস্থা, এবং যে কাজ অপরের চট করে করেন না সেই মৌলিক গবেষণামূলক সেই সব ক্ষেত্রে বিচরণ করা, যার দ্বারা তার পরিশ্রমের ফল তার উত্তরসূরিরা উপভোগ করতে পারেন এবং তাদের কাজের পথ প্রশস্ত হয়। তাই শ্রী বিদ্যানিবাসজি মিশ্রকে কেবল এইটুকু বলেই আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো, শ্রদ্ধা জানাবো, নমস্কার জানাবো, যে তাকে পেয়ে আমরা আমাদের এই গত 5 বছরের যে পরম্পরা তাকে আরো পরিপুষ্ট করতে পেরেছি, তাকে আরো সুদৃঢ় করতে পেরেছি এবং আগামী দিনের পথকে আরো সুগম করতে পেরেছি। আমাদের পক্ষ থেকে শ্রী বিদ্যানিবাসজি মিশ্রকে শ্রী শিবরতন যাসু, যিনি পুস্তকালয়ের কিছুদিন আগে পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি অঙ্গবস্ত্র দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে ডক্টর বিদ্যানিবাসজি মিশ্রর সঙ্গে তার ধর্মপত্নী তিনিও আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা তাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে তাকে একটি পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। আজকের প্রধান বক্তা ডক্টর মুরলী মনোহর যোশী। অনেক সময় মনে প্রশ্ন আসে যে ওনার ডক্টরেটের বিষয় কি। যারা ওনার ঘনিষ্ঠ তারা দেখেছেন যে ফিজিক্স এবং মেটাফিজিক্স এই দুয়ের মধ্যে ওনার কাছে কোনো রেখা নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতির সকল ক্ষেত্রে যার অবাধ বিচরণ, সেই রকম একজন মনীষী যার কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, যে ক্ষেত্রেই তিনি গেছেন সেখানেই তিনি তার একটি বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন। গত 1 বৈশাখ একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বাংলার কয়েকজন অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী যাদেরকে বলা হয় তারা সব একত্রিত ছিলেন। প্রসঙ্গত যোশীজির কথা আসাতে একটি কথা তারা অত্যন্ত সহজভাবেই বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই যে যোশীজির কাছে বাংলার একটা কৃতজ্ঞতার কারণ আছে। কারণ তার সঙ্গে একটা বিষাদ মেশানো আছে, দুঃখ মেশানো আছে। বাংলা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে হারিয়েছিল একটি কারণে। শ্যামাপ্রসাদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই প্রমাণ করতে গিয়ে তাকে চরম একটি মূল্য দিতে হয়েছিল, তা ছিল তার অমূল্য প্রাণ। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরের লাল চক দিল্লির লালকেল্লার মতনই তিরঙ্গা ঝান্ডা উত্তোলিত করার জন্য প্রশস্ত জায়গা। অনেক দিন পর আবার যিনি সেই অনুভূতিকে সমগ্র জাতির তন্ত্রে তন্ত্রে আর প্রত্যেকটি তন্ত্রীকে অনুরণিত করতে পেরেছিলেন, সেই ডক্টর মুরলী মনোহর যোশীর কাছে বাংলার সবাই
এই পটভূমিকায় একটি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করেন এবং এই কথাটুকু যাতে আমি একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আজকের দিনে যোশীজিকে মনে করিয়ে দিই যে সারা বাংলা, সারা কলকাতা তাকে কেমন নিজের মানুষ ভাবেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে তারা কোথাও দারিদ্র দেখায় না। সেই ডক্টর মুরলী মনোহর যোশী, যিনি একজন স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট, সেই পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত করে দেশ সেবায়, রাজনীতির ক্ষেত্রে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার যে জীবনের মূল সুর, অজানাকে জানা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পথে পদচারণা, তাও অব্যাহত রেখেছেন। সেই ডক্টর মুরলী মনোহর যোশীকে আমাদের পুস্তকালয়ের যিনি সাহিত্য সম্পাদক শ্রী ডক্টর প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠী, তিনি আমাদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাবেন অঙ্গবস্ত্র প্রদান করে। আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। সব থেকে অসুবিধের পরিচয় বোধহয় এটাই, কারণ কলকাতার আমাদের সব দায়িত্ব আমরা যার উপর দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত থাকি, যে কোনো দায়িত্ব হোক না কেন, সেই বিষ্ণুজি আমাদের সব কার্যক্রমে আমাদেরকে উদ্ধার করে। সেই আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, যিনিও শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গে সঙ্গে আজকাল রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সক্রিয় এবং আমাদের একান্ত আপনজন আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। তাকে আমাদের কলকাতার অন্যতম পুরপিতা শ্রী শান্তিলাল জৈন আমাদের সকলকার পক্ষ থেকে আর একবার শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানিয়ে শ্রী কালিদাস বসু, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তার মধ্যে অধিকাংশই তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আজকের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি একটি বিশেষ মহত্ব বা গুরুত্ব রাখে, কারণ আমরা যে ডক্টরজির নামে প্রজ্ঞা পুরস্কারের সূচনা করেছি তার জন্মশতবার্ষিকীর উপলক্ষ থেকে, সেই ডক্টরজির সঙ্গে নিকট সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য এই বঙ্গপ্রদেশের যে অতি অল্প কয়েকজনের হয়েছিল কর্মী হিসেবে জীবনের শুরুতেই। আর শ্রী কালিদাস বসু মহাশয় ডক্টর হেডগেওয়ারের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। আমরা তো মাঝে মাঝে দেখি যে একজন মানুষ যিনি ডক্টরজিকে দেখেছেন, আমাদের সেই সৌভাগ্যও হয়নি। তাছাড়া ছাত্রাবস্থা থেকেই সমাজ সেবার যে সাধনা তিনি শুরু করেছেন, পরিণত বয়সেও প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী হিসেবে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে সুপরিচিত হওয়ার পরেও তিনি তার সেই সাধনা অপ্রতিহত রেখেছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশের সংঘ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন প্রান্তীয় বা প্রাদেশিক সংঘ চালক হিসেবে। আজকে তিনিও আমাদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য এবং কার্যক্রমের গরিমা বাড়ানোর জন্য মঞ্চের উপরে রয়েছেন। তাকে পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে শ্রী দাউলালজি কোঠারি, যিনি আমাদের পুস্তকালয়ের অন্যতম
সহসভাপতি, তিনি অভ্যর্থনা করবেন অঙ্গবস্ত্র প্রদান করে। এখন আমি আমাদের অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে অনুরোধ করব যে ডক্টর হেডগেওয়ারের প্রতিকৃতিতে তারা একে একে আর পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আজকের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করবেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পরে শ্রী হীরালালজি কোঠারি এবং তার সঙ্গীরা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। ডক্টর হেডগেওয়ারকে লক্ষ্য করে এই সঙ্গীতটি রচিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শ্রী হীরালালজি কোঠারি ও তার সঙ্গীরা। केशव वह साधना तुम्हारी, आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी, आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। निशिदिन तेरी ध्येय चिंतना, आकुल मन की तीव्र वेदना। निशिदिन तेरी ध्येय चिंतना, आकुल मन की तीव्र वेदना। साक्षात्कार ध्येय का हो वह कामना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी, आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी।
हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। होगी पूर्ण सशक्त राष्ट्र की वह कल्पना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तभी पूर्ण हो राष्ट्र देव की वह अर्चना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। পুষ্পাঞ্জলি, তারপর সঙ্গীতাঞ্জলি আমরা শুনলাম, দেখলাম। এরপরে পুস্তকালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবেন মহামন্ত্রী শ্রী মহাবীর প্রসাদ বাজার। सम्मानीय डॉक्टर चंद्रबाबू, विद्या निवासी डॉक्टर जोशी जी, आचार्य पर्वत शास्त्री जी, माननीय कालिदा एवं मंचस्थ समस्त गुरुजन और सदीजनों, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार के इस पंचम समारोह में कुमार सभा परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 1918 में स्थापित कुमार सभा अपने इस लंबे कालखंड में अनेक कार्यक्रमों का संयोजन करते हुए यथा चरखे वाली सभा के नाम से चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो या कवि सम्मेलन के माध्यम से आपातकालीन संघर्ष का मुकाबला हो या देश के समसामयिक ज्वलंत समस्याओं पर अपने साहित्यिक गोष्ठियाँ या अनन्य विचार प्रदर्शन करने की गोष्ठियाँ कार्यक्रम हो, इन सब के माध्यम से कुमार सभा केवल वाचनालय और पुस्तकालय तक सीमित नहीं बल्कि एक ऐसे चिंतन का नाम बनता जा रहा है जिसमें भारत की सनातन शाश्वत संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य समेटा हुआ है। आप सब निरंतर कुमार सभा के कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और इसलिए अधिक लंबे परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुमार सभा 3 ऐसे विशिष्ट पुरस्कारों का
आयोजन प्रतिवर्ष करती है, जिसका उल्लेख आवश्यक समझता हूँ। पहला पुरस्कार है स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार। स्वामी जी की 125वीं जन्म जयंती पर इस पुरस्कार को आरंभ किया गया और इस पुरस्कार के पीछे जो हमारा हेतु है वो यही है कि स्वामी जी के जीवन के आदर्शों को पाथेय बनाकर जिन कार्यकर्ताओं ने समाज के पिछड़े और गरीब जनताओं के बीच में कार्य कर रहे हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता है उनको उनकी सेवाओं का स्मरण कराकर बाकी समाज को उसके साथ जोड़ने का ये हमारा प्रयास है। पिछली जनवरी को हमने ये 8वां पुरस्कार महाराष्ट्र के श्री अन्ना हजारे को दिया था। दूसरा पुरस्कार है डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, जिसमें आज हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को। इस पुरस्कार के पीछे भी हमारी जो एक कल्पना, जो हमारी एक योजना है, वो यही है कि भारत की सनातन प्रज्ञा को अपना जीवन का पाथेय बनाकर और जो कार्यकर्ता, जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में अब कार्य करते हुए और भारत को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम सम्मानित कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं कि आज ऐसे ही मनीषी पुरुष डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। तीसरा पुरस्कार कुमार सभा की महिला समिति द्वारा आयोजित है। आचार्य श्री विष्णुकांत जी शास्त्री की धर्मपत्नी, उनके नाम से ये पुरस्कार प्रारंभ किया हुआ है और छठा आयोजन इसका अभी पिछले दिसंबर में हमने आयोजित किया था। महिलाओं के, छात्राओं के बीच में, स्कूल की छात्राओं के बीच में और भारत की जो अपनी थाती है गीता, उस गीता का सब लोग अध्ययन करें, उसके प्रति एक विशिष्ट दृष्टि जो है उसको समझ सकें, इस दृष्टि से इस पुरस्कार का आयोजन है। ये 3 बड़े पुरस्कार और बाकी अन्य वर्ष भर में कम से कम 10 गोष्ठियों के साथ कुमार सभा अपना निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ती है। आप सबका सक्रिय सहयोग उसमें मिलता रहा है और मैं पुनः आपसे ये आग्रह करता हूँ कि भविष्य में भी आप सबका सक्रिय सहयोग मिलेगा और आप सबके इस सक्रिय सहयोग के माध्यम से कुमार सभा आगे बढ़ती जाएगी, यह मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। আজকের এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য দেশের অনেক বিশিষ্ট মনীষী তাদের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে সময়ের অভাবে মাত্র কয়েকটি পাঠ করার জন্য আমি আমার সহযোগী বন্ধুবর শ্রী বিমল লাটকে অনুরোধ করব। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आपके समक्ष मैं 3 संदेशों का पाठ कर रहा हूँ। प्रथम संदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मान्यवर श्री राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया। प्रिय श्री जुगल किशोर जी, सप्रेम नमस्कार। इस वर्ष के डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार के लिए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का चयन बड़ा ही उचित और उपयुक्त है। मैं उनको लगभग 50 वर्ष से जानता हूँ। जब वे प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने अनेक विद्यालयों, संस्थानों में काम किया है और उन सभी संस्थानों को अपनी योग्यता के प्रकाश से आलोकित किया है। वे भारतीय साहित्य परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं, उसको भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। आपके इस चयन पर आपको बधाई। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति और साहित्य के लिए और अधिक वेग से कार्य करते रहेंगे। नवभारत टाइम्स में आने से उस पत्र का कलेवर ही बदल गया है। प्रत्यक्ष इस समय उपस्थित न हो सकने के लिए क्षमा, आपका रज्जू भैया। दूसरा संदेश श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष का 5वां डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार नवभारत टाइम्स दिल्ली के प्रधान संपादक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को कलकत्ता के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सभागार में आयोजित समारोह में दिनांक 17 अप्रैल 1994 को प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति, दर्शन,
एवं अध्यात्म की ओर ध्यान दिया है और वे मूर्धन्य चिंतक, लेखक, विचारक, भाषाविद, पत्रकार व अंग्रेजी व संस्कृत साहित्य के विद्वान रहे हैं। डॉक्टर मिश्र को यह पुरस्कार देकर आपने एक विद्वान साहित्यकार को सम्मानित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। हार्दिक शुभकामनाओं सहित आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा शुभकामना संदेश श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से। प्रिय श्री जुगल किशोर जी, ये जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हिंदू चिंतन धारा को जीवन के विभिन्न आयामों में सुप्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील साहित्यकारों, पत्रकारों को दिया जाने वाला श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय का इस वर्ष का डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार प्रख्यात भाषाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को प्रदान किया जा रहा है। हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इस पुरस्कार के योग्य अधिकारी हैं। पुरस्कार वितरण समारोह की सफलता की शुभकामना के साथ साथ पंडित विद्यानिवास मिश्र को भी मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका लाल कृष्ण आडवाणी। नमस्कार। আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যে যারা এখানে এসেছেন তাদের মুখনিসৃত বক্তব্য শোনার জন্য। সেই অধ্যায় শুরু হচ্ছে এখন। প্রথম অনুরোধ করব আচার্য শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে, তিনি তার বক্তব্য আমাদের সকলকার সামনে রাখুন। শ্রী বিষ্ণুজি। आज के अध्यक्ष और मेरे श्रद्धेय गुरु प्रताप चंद्र जी चंद्र, साहित्य जगत में दीप्यमान ऋषितुल्य आचार्य विद्यानिवास मिश्र, सव्यसाची की तरह अनेक कलाओं, विज्ञानों, राजनीति को साधने में निष्णात श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कालिदास, जुगल जी, सुजितदा और मैं भूल गया आदरणीय भाभी जी और मित्रों, डॉक्टर हेडगेवार का नाम लेते ही रोमांच होता है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की पंक्तियां याद आ रही हैं, जो कुछ मनुष्य का कहाँ है वह, आंखें मुदती हैं तो रहस्य खुल जाता है, न्यास जो मिला है उसकी ही समृद्धि के लिए, नर निज आयु के बरस कुछ पाता है। हम सब इस भ्रांति में, भ्रम में पड़े पड़े सोचते हैं ये मेरा है, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा बार, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मेरा मेरा। लेकिन जब आंखें मुदती हैं तो ये रहस्य खुल जाता है कि कुछ भी अपना नहीं। फिर हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भगवान ने हमको जन्म देकर मनुष्य बनाकर क्यों भेजा है? इसको समझाते हुए मानस मनोविज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने कहा कि हम सबको परंपरा से कुछ न्यास मिला है। हम सब अपने जीवन में जितनी मात्रा में उस न्यास में समृद्धि करते हैं, उतनी मात्रा में हमारा जीवन सार्थक है, धन्य है। और अगर उस न्यास को अग्रसर किए बिना हम चले गए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा, क्या कहें कार्य नुमाया, काम क्या क्या कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो इस प्रकार का अर्थहीन जीवन, केवल पशु की तरह उदर पोषण, वंश वृद्धि, यह मनुष्य का जीवन नहीं है। जो बड़ा न्यास हमको मिला है, उत्तराधिकार जो मिला है,
जिस उत्तराधिकार के कारण हम बोल सकने में समर्थ हैं, हम जीवित रहने में समर्थ हैं, उस न्यास में हमने कितनी समृद्धि की। कितने गौरव की बात है कि डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति में हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो इस न्यास को निरंतर समृद्धतर करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार के साथ प्रज्ञा शब्द जुड़ा इस पुरस्कार में। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर हेडगेवार ने तो कोई पुस्तक नहीं लिखी, डॉक्टर हेडगेवार तो कोई बहुत बड़े चिंतक नहीं थे। कैसी पुस्तक आप चाहते हैं? जो पुस्तक कागजों पर छपती है वो पुस्तक नहीं है जो हजारों कार्यकर्ताओं के हृदय पर छपी हुई है। जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर हेडगेवार की इस विरासत को स्वीकार किया कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में बैठकर नहीं किया। श्रीमद् भागवत में आया है, तप्यन्ते लोकतापेन प्रायशः साधो जना परमाराधनं तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मा। अखिलात्मा पुरुष की सबसे बड़ी आराधना दूसरों के ताप को स्वयं झेलने में। जो अभिशप्त हैं, तप्त हैं, पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा के निवारण के लिए जो अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं, वे भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। गीता में भी कहा गया है, ये तक प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जो कण कण में प्राप्त व्याप्त है उस विभु परमात्मा की उपासना हम केवल चंदन अक्षर से नहीं कर सकते। जो करते हैं चंदन अक्षर फूल से, उनको मेरा नमन, वो भी बड़ा काम है। लेकिन उस व्याप्त परमात्मा की वास्तविक पूजा स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे परमाराधक थे परमात्मा के, ऐसे परमाराधक पूजक थे उस कण कण में व्याप्त सर्वात्मा के। और इसीलिए उन्होंने कहा स्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। हमने ये जो कमर बांधी है ये अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं बांधी है, ये हमने अपने नाम के लिए नहीं बांधी है, यश के लिए नहीं बांधी है। तुमने किया व्यतीत अकिंचन सरल प्रसिद्ध परांगमुख जीवन। डॉक्टर हेडगेवार का सारा जीवन अकिंचन प्रसिद्धि परांगमुख, केवल अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को, प्रभु को समर्पित, कण कण तिल तिल स्वाहा करने वाला वो जीवन, वो हमको प्रेरणा देता है। उनकी प्रज्ञा अद्भुत थी। बहुत बार उनके द्वारा प्रयुक्त एक सूक्ति को लोग गलत समझते हैं। डॉक्टर हेडगेवार एक सूक्ति बार बार दोहराते थे, यह क्रियावान स पंडिता है। जो काम करता है वही पंडित है। पूरा श्लोक है, पाठका पठितारश्च ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। वे तमाम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले शास्त्र चिंतक तो केवल व्यसनी हैं, मूर्ख हैं। जो क्रियावान है वो पंडित है। क्या वे विद्या का विरोध करते थे? क्या वे चिंतन का उपहास करते थे? नहीं। एक और श्लोक से जोड़कर श्लोक का महत्व समझना चाहिए। वो श्लोक है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। जो कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उससे वो अच्छा है जिसने 2-4 किताबें पढ़ ली मेरे। और जो किताब पढ़कर भूल जाता है उससे वो अच्छा है जो उसमें लिखे हुए को याद रखता है। और जो तोते की तरह याद रखता है उससे वो अच्छा है जो उसका मर्म जानता है, ज्ञानी है।
और उसके मर्म को जानने वाले से वो अच्छा है जो उस ज्ञान को धारण कर व्यवसाय अपने जीवन में, अपने कर्म में उतारता है। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे ही ज्ञानी। सर्वमपि ज्ञानम कर्म परम ऋते आत्मज्ञानात्। समस्त ज्ञान कर्म पर होता है। अगर ज्ञान कर्म में नहीं उतरा, सिर्फ आत्मज्ञान को छोड़कर, तो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी दीर्घ दृष्टि से, अपनी प्रज्ञा से भारत की जिन समस्याओं को समझा था और ये अनुभव किया था कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या उसकी संगठनहीनता है, और ये अनुभव किया था कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा अभिशाप जाति पाति में विभक्त होकर आत्मघाती, आत्मकलह में लिप्त हो जाना है। और उसका जो सुचारू उपचार वे कर गए हैं, वो अगर प्रज्ञा नहीं है, भविष्य को देखकर उसके अनुकूल विधान करने का उपाय नहीं है, तो कोई भी प्रज्ञा नहीं। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार की उस विशाल प्रज्ञा का सम्मान करने के लिए हमने ये आयोजित किया। और ये आयोजन उनको सम्मानित करता है जो उस तत्व को, उस संस्कृति को, उस परंपरा को, सनातनता की उस खोज को समृद्ध करते। विद्यानिवास मिश्र ने हिंदुत्व को इसी में पकड़ा है, सनातनता की खोज। केवल पुरातन नहीं, पुरातन तो पुराना हो जाएगा, सड़ जाएगा। जो पुरातन होने के साथ नित्य नूतन है, वही सनातन है। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की 60 से अधिक पुस्तकों में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उस सनातन का अनुसंधान है। उस सनातन को उन्होंने लोक और वेद दोनों से जोड़कर देखा है। केवल विद्या, केवल वेद, केवल ज्ञान तो निर्गुण निराकार हो जाएगा। उसका जो सगुण साकार रूप है, लोक जीवन में उसकी अनुभूति, लोक जीवन में उसका निरंतर व्यवहार, लोक कथाओं के माध्यम से हमारी संस्कृति को समृद्ध करने की परंपरा परिपाटी, लोकगीत, लोक जीवन, लोक नाट्य, लोक शैली, लोक जो आलोक कार्य, लोक जो अंधकार की ही विरासत नहीं है। याद रखें कि पश्चिम के फोक से पूर्व के लोक में जमीन आसमान का फर्क है। फोक अनपढ़, अवज्ञा का सूचक, वो जनजीवन का द्योतक, कर्मकांड या उनका शास्त्र जो है। भारतवर्ष में लोक, तुलसीदास ने कहा कि लोक के वेद बड़े लो, लोक बड़ा है कि वेद बड़ा है। और तुलसीदास ने कहा कि कभी कभी वेद से भी लोक बड़ा है। रामचंद्र जब निषाद के सामने हार मान लेते हैं और समर्पित करते हैं, वो लोक की चेतना हमारे समाज को अग्रसर करती है। विद्यानिवास मिश्र कालिदास से आरंभ करके तुलसीदास और लोक कवि तक समान रूप से संचरण करते हैं। पाणिनि के अधिकारी विद्वान हैं और सुललित निबंधों में आत्मव्यंजकता इस समय हिंदी में सर्वोपरि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में प्रतिफलित होती है। नवभारत टाइम्स के माध्यम से जो काम वे कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उसका मूल्यांकन करें। मैं बहुत ही गौरव के साथ ये दोहराना चाहता हूं कि जब धर्म को राजनीति से अलग करने का एक षड्यंत्र चला था, तो नवभारत टाइम्स ने अग्रणी भूमिका निभाकर ये कहा था कि भारतवर्ष में धर्म विरहित कुछ नहीं होता। भारतवर्ष धर्म पर टिका है और भारतवर्ष का प्रत्येक संचार धर्म सम्मत होना चाहिए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज गैट को लेकर जिस प्रकार नवभारत टाइम्स भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है, मैं उसके लिए उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर
हमको गौरवान्वित किया, भगवान उनको सफल करे। अभी हम विष्णु जी को सुने, लगता है कि मन और मस्तिष्क दोनों ही भर गया, लेकिन अभी भी हमको सुनना है, जानना है, सीखना है। और उसी श्रृंखला में मैं आमंत्रण करता हूं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को, जो हमारे सामने आज के मुख्य वक्ता के रूप में आज का दिन क्या है, क्यों है, उसके बारे में हमको सुनाएंगे। डॉक्टर जोशी। आज के समारोह के आदरणीय सभाध्यक्ष श्री प्रताप चंद्र जी, आज के इस डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार के से विभूषित होने वाले अपने सम्माननीय अग्रज पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, आदरणीय भाभी जी, अग्रज आदरणीय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, कालिदा, डॉक्टर सुजीत धर, श्री जुगल किशोर जी जेठलिया, इस मंच पर विराजमान बड़ा बाजार कुमार सभा के सभी पदाधिकारी और इस समारोह में पधारे हुए भगिनी बंधुओं, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने बहुत ही उद्बोधक और मार्मिक शब्दों में आज के कार्यक्रम का महत्व हमारे सामने रखा और आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के संबंध में उनकी उपलब्धियों और हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन, हिंदू आध्यात्म, हिंदू चेतना के उन्नयन में उनके निरंतर सतत योगदान की तमाम विविध विधाओं को, उसके आयामों को प्रस्तुत किया। भारत में ऐसा कम ही होता है कि यथा नाम तथा गुण ऐसा व्यक्तित्व हमें मिले। पंडित विद्यानिवास जी का नाम विद्यानिवास है और साक्षात सरस्वती उनमें निवास करती है। इसलिए बहुत आनंद होता है कि उन्होंने अपने इस नाम को अपनी साधना से, साहित्य की साधना से, अपने नैष्ठिक जीवन से, अपनी लेखनी से सुकृत किया, सफल किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और बड़ा बाजार कुमार सभा के लोगों ने, पदाधिकारियों ने उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे अवसर दिया। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो हमारे बहुत ही देदीप्यमान पुरातन छात्र हैं। उनके छोटे भाई भौतिकी के ही प्राध्यापक हैं। इस नाते से उनसे मेरा संबंध और भी अधिक है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि इस समारोह में उपस्थित होकर और उनका सम्मान करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, गौरव है। आज के इस समारोह के अवसर पर जब हम एकत्रित हैं, विश्व के सामने ऐसे बहुत से संकट हैं जिनके निवारण के लिए लगभग विश्व के सभी बड़े देश चिंतित हैं। मुझे पता नहीं वो उस संकटों का निवारण कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी चिंताधाराओं में अभी ऐसे तत्व प्रकट नहीं हो रहे
जो इस वैश्विक संकट से विश्व को उबार सकें, मानवता को उबार सकें। पश्चिम में भी अब ये विचार होने लगा है कि ये संकट जो विश्व के सामने आया है वो संकट सभ्यताओं का है, संस्कृति का है। कुछ दिन पहले तक पश्चिम के लोग मानते थे कि ये संकट राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं और उत्पादन प्रणालियों से संबंधित है। वो ये मानते थे कि ये संकट, जिसे आप प्रथम विश्व या जनतांत्रिक विश्व और द्वितीय विश्व, जिसे आप रूस के नेतृत्व में चलने वाला समाजवादी या साम्यवादी विश्व कहते थे, उन दोनों की विचारधाराओं के टकराव का संकट है। और विश्व में जो भी संघर्ष है, तनाव है, वो इन दोनों खेमों में जो विसंगतियां हैं, विरोधाभास हैं, उनसे उत्पन्न होता है। शीत युद्ध या कोल्ड वार का जो सारा दीर्घकाल रहा, उसकी आधारशिला यही थी कि विश्व में दो समांतर विचारधाराएं, उत्पादन प्रणालियां, राज्य प्रणालियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हुई नजर आती थी। विश्व दो खेमों में बटा हुआ था और उनके हित संघर्ष के कारण कुछ टकराव उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन उनमें से एक तिरोधान हो गया। साम्यवाद विशृंखलित हो गया, टूट गया, बिखर गया। रूस का तंत्र आधारहीन हो गया और तब उनको लगा कि अब तो विश्व में हमारी जयकार हो गई। पश्चिमी जगत की विचारधाराओं की, जीवन सरणी की इस द्वितीय विश्व के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध हो गई और इसलिए अब संकट का जो संकट था वो टल गया। लेकिन उनके विचारक कहते हैं कि नहीं, ये संकट टला नहीं, ये संकट दूसरे रूप में उत्पन्न होकर आ गया। वो कहते हैं कि अब संकट संस्कृतियों का है। अब संकट राजनीतिक आर्थिक विचारधारा का उतना नहीं है जितना संकट संस्कृतियों के टकराव का, सभ्यताओं के टकराव का है। 10-20 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक टकराव या संस्कृतियों की विभिन्नता और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं के बारे में पश्चिमी दार्शनिक, पश्चिमी विचारक सोचते नहीं थे। लेकिन अब वो सोचने लगे और अब वो कहते हैं कि विश्व में कुछ मौलिक संस्कृतियां हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर विश्व की जनसंख्या अपने अपने पृथक सांस्कृतिक अधिष्ठान पर बैठी हुई है। कहते हैं कि उनमें से एक है पश्चिमी जनतांत्रिक, उन्मुक्त व्यापारवादी, मानव अधिकारवादी संस्कृति, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और जिसके अंदर यूरोप के बहुत से देश शामिल हैं, सम्मिलित हैं। और इनका कहना है कि हमारी संस्कृति के मुख्य अभिलक्षण हैं जनतंत्र, फ्री मार्केट इकोनॉमी, उन्मुक्त व्यापार और मानवाधिकार। लेकिन कहते हैं कि हमारी इस संस्कृति की आधारशिला है बाइबल, ईसाइयत। हमारा उत्स ईसाइयत में है। ये एक तरह से ईसाई संस्कृति है जिसकी अभिव्यक्ति आजकल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में इन तीन सिद्धांतों के द्वारा हो रही है। अब इसमें इस उनके विश्लेषण में बल है। ये केवल ऊपरी तौर पर विश्लेषण नहीं है, उन्होंने समस्या के मर्म की तरफ जाने की चेष्टा की है। क्योंकि जब रूस विशृंखलित हो रहा था और गोर्बाचोव अपनी पुस्तक लिख रहे थे पेरेस्ट्रोइका, तो उन्होंने उसमें तर्क दिया कि वो पश्चिमी यूरोप के अंग हैं, रूस को पश्चिमी यूरोप से अलग नहीं किया जा सकता। 1980 तक
जो लोग ये कहते थे कि रूस का पश्चिमी यूरोप से प्रचंड विरोध है, इन दोनों में एकता साम्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वहीं 80 के दशक के बाद ये कहा जाने लगा कि रूस पश्चिमी यूरोप से भिन्न नहीं है। और गोर्बाचोव जैसे साम्यवादी देश के विचारक ने लिखा कि रूस आखिर यूरोप से अलग कैसे हो सकता है, हम और आप तो दोनों एक ही सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, पेरेस्ट्रोइका में गोर्बाचोव लिखते हैं। और हमारी उस सांस्कृतिक विरासतता का मूल ईसाइयत में है, क्रिश्चियनिटी में है। वो कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रूस में बहुत पहले आई, जब यूरोप के बहुत से देशों में ईसाइयत नहीं थी तब से रूस में ईसाइयत थी, और इसलिए इस महान ईसाई संस्कृति के हम और आप समान उत्तराधिकारी हैं। लीजिए, कम्युनिज्म गायब, मार्क्सिज्म गायब, साइंटिफिक रैशनलिज्म गायब, तमाम जितने सिद्धांत थे एंजल्स के, हीगल के, लेनिन के, स्टालिन के, सब गायब, और आप एकदम अचानक पहुंच गए सांस्कृतिक एकता पर, और सांस्कृतिक एकता का अधिष्ठान आपने ढूंढा ईसाइयत। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, उनका विश्लेषण अपने देश के इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं के आधार पर वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तमाम मुलम्मे के बाद, तमाम ऊपरी दार्शनिक बड़े बड़े शब्द जाल के पश्चात एकता का अधिष्ठान जहां ढूंढा जा रहा है, वो ढूंढा जा रहा है एक सांस्कृतिक एकता के अंतर्गत, और उस सांस्कृतिक एकता का उत्स, उसका मूल खोजा जा रहा है एक धर्म ग्रंथ के अंदर, बाइबल के। तो इसका अर्थ यह है कि पश्चिमी जगत ने एक बहुत बड़े मानव समुदाय को ईसाइयत के आधार पर संगठित करने की चेष्टा की, और उस ईसाइयत का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सिद्धांतों की वो घोषणा करते हैं: प्रतिस्पर्धा का बाजार, जनतंत्र और मानव अधिकार। कहते हैं दूसरी एक और ऐसी सांस्कृतिक संगठन है, इकाई है, जिसका आधार कुरान शरीफ है, और वो कहते हैं कि ये इस्लामिक जीवन मूल्यों के आधार पर मानवता का एक बहुत बड़ा अंश संगठित है। उसकी सांस्कृतिक एकता है, उसके जीवन मूल्यों में साम्य है, उसकी जीवन दृष्टि एक सी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का विकास एक ढंग से हुआ है, और उसकी प्रेरणा उनको कुरान शरीफ से मिली। यानी निज़ाम मुस्तफ़ा ये दूसरी एक संस्कृति का अधिष्ठान है कि विश्व भर कुरान शरीफ के आधार पर चले, इस्लामिक जीवन मूल्यों के आधार पर चले। कहते हैं कि ये दूसरी एक और बड़ी संस्कृति है। उदाहरण देते हैं कि ठीक है, आपस में झगड़े होते होंगे, इस्लामिक देशों में भी आपस में टकराव होता है, ईसाई देशों में भी आपस में टकराव होता है, लेकिन जब ये समस्या इस्लामी देशों बनाम ईसाई देशों में आती है तो फिर वो टकराव धीमे हो जाते हैं, और इस्लाम और ईसाइयत का टकराव ये बड़ा व्यापक रूप ले लेता है। कहते हैं उदाहरण देख लीजिए, तो यूगोस्लाविया में क्या हो रहा है, आर्मीनिया अजरबैजान में क्या हो रहा है। कहते हैं ठीक है, कोई छोटे छोटे इस्लामिक राज्य आपस में संघर्ष कर सकते हैं, कुवैत और इराक संघर्ष कर सकते हैं, इजिप्ट से संघर्ष हो सकता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी संघर्ष हो सकता है, लेकिन जब कभी सवाल निज़ाम मुस्तफ़ा और निज़ाम रोम का आएगा, पोप का आएगा, तब इन दोनों के संगठन एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। इतिहास की घटनाएं बताती हैं इसके बारे में। कहते हैं कि एक तीसरी और सांस्कृतिक चेतना है जो चीन में है। अब कम्युनिज्म के तिरोधान के बाद चीन को भी अपनी तलाश करनी होगी कि चीन है क्या, क्योंकि कम्युनिज्म तो अब निरर्थक हो गया, संदर्भहीन हो गया, इसलिए उसकी मान्यताएं कहां जाएंगी। तो विश्लेषण किया जाता है कि उसे भी कन्फ्यूशस और ताओ की शरण में जाना पड़ेगा, बुद्ध महाराज की शरण में जाना पड़ेगा, और किसी न किसी एक अपनी पहचान के लिए चीन के प्राचीन मौलिक तत्वों की तरफ, दार्शनिक तत्वों की तरफ उसे झुकना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि आज भले ही चीन कुछ ऊपर से दिखाई देता हो, लेकिन आने वाले कल में
उसकी अंतः प्रेरणा, उसकी अंतः चेतना, उसकी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना का अधिष्ठान कन्फ्यूशियस और ताओ होंगे। और ये सांस्कृतिक चेतना भिन्न है इस्लामी और ईसाइयत की चेतना से। और इसलिए कहते हैं कि तीन बड़े बड़े ऐसे सांस्कृतिक स्रोत ये विश्व में हैं जिनमें परस्पर हितों की टकराव उभर रहे हैं। अभी पूरे तौर पर तो उन्होंने युद्ध का रूप नहीं लिया, लेकिन उभर रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक चौथी और सांस्कृतिक विरासत है हिंदू विरासत। यह भी विश्व की सबसे बड़ी पुरानी विरासत है। इसकी सांस्कृतिक चेतना का उत्स हिंदू जीवन दर्शन में है, वेद और उपनिषद में है, भारत के विभिन्न दार्शनिक अधिष्ठानों में है, और ये इन तीनों से पृथक है। इसका एक अलग अनूठा अपना रूप है, और ये भी एक बड़े सांस्कृतिक चेतना के रूप में विकसित हो रही है, प्रभाव बढ़ा रही है। इसके अंदर भी अपने आप को पहचानने की और अपनी जड़ों को जानने की एक ललक पैदा हो गई है, और इसलिए कालांतर में बहुत बड़ी जनसंख्या जो इस हिंदू चेतना से प्रभावित है, इससे युक्त है, ये भी विश्व की एक धारा, विश्व में एक अलग पहचान रखने वाली संस्कृति के रूप में है। और उनका कहना यह है कि ये चार मोटे मोटे इस प्रकार के सांस्कृतिक विभाजन विश्व में उभर रहे हैं, जिनमें आज नहीं तो कल संघर्ष होगा। अब मुझे ऋषि अरविंद का भी स्मरण आता है। उन्होंने भी बहुत पहले ये बात कही थी कि इस 20वीं शती के अंत तक विश्व में केवल 4-5 ही ऐसे सांस्कृतिक चेतना के स्रोत दिखाई देंगे, और समूचे विश्व में इनके बीच में परस्पर एक दूसरे के साथ संघर्ष आने की संभावना आ सकती है। मेरा ख्याल यह है कि इस सब विश्लेषण को, जिसको कि आज विश्व के बड़े वैचारिक स्तर पर हम प्राप्त कर रहे हैं, डॉक्टर हेडगेवार ने शायद बहुत पहले ही समझ लिया था, और उन्हें यह मालूम था या उनको अनुभूति थी, उनकी शायद दिव्य दृष्टि थी कि उनको ये अंदाज था कि एक न एक समय ऐसा आएगा जिस समय विश्व की संस्कृतियों में परस्पर टकराव आने की संभावना आ सकती है। तो उस समय भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए, यह हिंदू संस्कृति किस प्रकार से संरक्षित की जानी चाहिए, ये अपनी भूमिका विश्व में कैसे निभा सकती है, क्या भूमिका निभाए, इसके बारे में भी शायद उनको कुछ अनुभूति हुई होगी, कुछ उन्हें अनुमान हुआ होगा, पूर्वाभास हुआ होगा कि उन्होंने इस तत्व को जीवित रखने का बीजारोपण 1925 में कर दिया था। इसलिए जब आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी कह रहे थे कि प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है और प्रज्ञा का क्या अर्थ है, तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर हेडगेवार ने पुस्तक भले ही न लिखी हो, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में इस भारत की आत्मा का साक्षात्कार किया था और समझ लिया था कि यदि इस भारत को बचाना है तो इसकी सांस्कृतिक अधिष्ठान की रक्षा करना आवश्यक है, और वो सांस्कृतिक अधिष्ठान केवल हिंदू संस्कृति के रूप में ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब जब मैं इस पश्चिम के विचारकों की ओर देखता हूं और उनके इस विश्लेषण को सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि ये संस्कृतियों में संघर्ष और टकराव की बात कर रहे हैं। इनकी दृष्टि में मानव जाति केवल संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के लिए है, और जीवन केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का ही नाम है। अब स्वाभाविक है दार्शनिक स्तर पर हमारा इससे टकराव है। क्या जीवन केवल जीवित रहने का संघर्ष है? इज लाइफ एन ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? कि अस्तित्व के लिए हम संघर्ष करते रहें, छीना झपटी करते रहें, दूसरे का छीन कर खाते रहें? क्या जीवन का यही मतलब है? या जीवन कुछ इससे अधिक उदात्त, कुछ इससे अधिक भिन्न, कुछ इससे अधिक श्रेष्ठ, कुछ इससे अधिक कल्याणकारी, कुछ उससे अधिक मानव के
उत्तम श्रेष्ठ मूल्यों के प्रति समर्पित होने के लिए। अगर युद्ध के टकराव से अर्थ पश्चिमी जगत के लोगों का है तो वो तो बर्बरता का प्रतीक हो सकता है, संस्कृति का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन यदि वैचारिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से उनका तात्पर्य है तो मैं स्वीकार करता हूं कि विश्व में इस मामले में सांस्कृतिक संघर्ष आएगा, विचारों की टकराहट आएगी, आनी चाहिए। क्योंकि सवाल आज इस बात का है कि इस मानवता का, इस विश्व का आगे का भविष्य का स्वरूप क्या हो। क्या ये परस्पर युद्धरत संघर्षशील राष्ट्रों के बीच में बटा रहे? क्या ये सामरिक शक्ति के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर शोषणकारी व्यवस्थाओं का निर्माता बना रहे? क्या ये विश्व विषमता से युक्त, पीड़ा, दुख, अभाव और युद्ध से ग्रस्त रहे? या ये विश्व परस्पर बंधुभाव से, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, पारिवारिक भावना के साथ कुछ उच्च जीवन मूल्यों की साधना के लिए कर्मस्थली के रूप में बना रहे? ये टकराव तो आना ही होगा। पश्चिम ने तो सिखाया है कि ये सारा विश्व भोग के लिए, जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, सामी संप्रदाय हैं, उनमें ये सारी प्रकृति, ये सारा विश्व, ये सारी भूमि भोग के लिए। बाइबल कहती है कि ये जो कुछ हमने बनाया है भगवान ने, ये तुम्हारे भोग के लिए बनाया है, जाओ फलो फूलो और इसका भोग करो। अब इसमें से जो दृष्टि निकलती है वो शोषण की निकलती है। और जब पश्चिमी विचारक ये कहते हैं कि वो जिस संस्कृति के पुरोधा हैं उसका उत्स बाइबल में है और उसकी परिणति गैट में है,